محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے مظلومیت کے بعد اللہ رب العالمین کی خاطر، دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم دنیا میں ان کا ایک بہترین ٹھکانہ بنائیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کے اعتبار سے تو بہت بڑا اجر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ محترم بھائیوں، اس آیت میں ہجرت اور مہاجر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہجرت کرنے والا جو ہجرت کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے رہنے کے لیے اچھے ٹھکانے کا بہترین وعدہ کیا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے اس جمعے کے خطبے میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یا جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں، وہ ہے ہجرت ایک عظیم قربانی۔ محترم بھائیوں، ماہ محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ ماہ محرم یہ شرعی اعتبار سے اور تاریخی بھی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات، بہت ساری یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں، اور چونکہ ہجرت کا بھی تعلق اسی مہینے سے ہے، ماہ محرم جب آتا ہے، جب ماہ محرم آتا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو تن من دھن کی قربانی دی ہے، وہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کی خاطر، دین کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک کی سکونت اختیار کر لینا، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر چلے جانا، اللہ کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جانا اور سکونت اختیار کر لینا۔ اور عام طور پر، بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ ہجرت کے عام طور پر 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب مظلومیت۔ ایک شخص ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں پر اس پر ظلم و تشدد کی آگ برسائی جا رہی ہے، وہ پریشان ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ ظالم کے طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہمت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ وہاں سے منتقل کر لے، وہ ہجرت کر لے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ معاندین اسلام، دشمنان اسلام لوگوں کو مجبور کر دے کہ تم ہمارے اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہو، اور آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ مجبور کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہجرت ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہو کہ ایک انسان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اس کے دین کی حفاظت اور اس کے ایمان کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہو۔ اگر وہ آبادیوں میں رہتا ہے تو نہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہاں سے وہ منتقل ہو جائے، ہجرت کر لے۔ تو یہ عام طور پر 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر ایک مومن کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں یہ مرحلہ، ہجرت کا مرحلہ ضرور آتا ہے، اگرچہ وہ سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا ہو۔ انبیاء
और इसी तरीके से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से उनकी जिंदगियों के बारे में अगर आप देखें तो उनकी जिंदगियों में कई ऐसे नबी गुजरे हैं जिनके साथ ऐसा मामला हुआ है और उन्हें अपना वतन छोड़ करके, अपना मुल्क छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके दूसरी तरफ हिजरत करना पड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के थे, आपकी पैदाइश इराक में हुई और इराक के अंदर जब उन्होंने इत्माम हुज्जत पूरी कर ली उसके बाद उन्हें हिजरत करना पड़ा और वो इराक को छोड़ करके शाम की तरफ चले गए, सीरिया चले गए, फिलिस्तीन की तरफ चले गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ये मिस्र के रहने वाले थे, लेकिन उनके साथ मामला ऐसा हुआ जब फिरौन उन्हें कत्ल करना चाहता था, फिरौन जब उन्हें पकड़ना चाहता था। आप सूरह क़सस को पढ़िए, सूरह क़सस के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हिजरत का वाकया पूरी तफसील के साथ बयान है कि जब उनके हाथों एक किसी का कत्ल हो गया था और उस वक्त उन्हें ढूंढा जा रहा था और उन्हें कत्ल की साजिश की जा रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी मिस्र से मदयन की तरफ हिजरत कर गए। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आप देखिए कि उनके कौम के लोगों ने कहा था क़ालू लइल्लम तंतही या लूतू इन्नका मिनल मरजूमीन, यानी इस तरह की आयतें अगर आप पढ़िए। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमूमी तौर पर इसका तज़किरा किया है कि कौम के लोग उनके नबियों से, उनके पैगंबरों से ये बात कहा करते थे, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि कौम के लोग अपने नबियों से, अपने पैगंबरों से और अपने रसूलों से जो उनके यहाँ आए हुए होते थे, वो लोग ये बात कहा करते थे कि हम तुम्हें जरूर बिजरूर तुम्हारे इस शहर से हम तुम्हें निकाल देंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, तुम हमारे अकीदे को कबूल कर लो, हमारे अकीदे को मान लो और अपनी मिल्लत में वापस आ जाओ, तो ऐसी सूरत में हम तुम्हें यहाँ रखेंगे, वरना हम तुम्हें जरूर निकाल देंगे। तो मोमिन की जिंदगी में कहीं ना कहीं इस तरह के मराहिल आते रहते थे। और हिजरत का जो असल मकसद और हिजरत का जो हदफ होना चाहिए वो अल ईमान की हिफाजत, अकीदे की हिफाजत, तौहीद की हिफाजत अगर हम आबादियों में नहीं कर सकते हैं तो हम वीरानों में चले जाएं। आप देखिए असहाबे कहफ का वाक़या, सूरतुल कहफ हम हर जुमा की तिलावत करते हैं। अब सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ का वाक़या तफसील से जिक्र किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, कि असहाबे कहफ का वाक़या कि वो लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन क्या है उन्हें उनके अकीदा और उन्हें खतरा महसूस होने लगा कि वो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, वो अपने अकीदे की हिफाजत नहीं कर सके थे। उन्होंने आबादियों से वीरानियों का रुख किया, पहाड़ों की तरफ चले गए और एक गार में उन्होंने पनाह ले लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत की शक्ल में 309 साल तक उन पर नींद सारी कर दी। तो कहना यह है कि हिजरत का असल मकसद जो होना चाहिए वो हमारा ईमान और अकीदा और तौहीद की हिफाजत होनी चाहिए। आज देखिए बहुत सारे लोग हिजरत करते हैं और उसको हिजरत का नाम देते हैं, बिजनेस की खातिर हिजरत करते हैं, अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाते हैं। अगर किसी के पास पैसा है तो वो दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और ना जाने कौन कौन से मुल्क का वो सफर करते हैं। वो हिजरत नहीं है कि आदमी अपने बिजनेस के खातिर या इसी तरीके से अपने कारोबार की खातिर अपना मुल्क छोड़ करके दूसरी जगह बस जाए, वो असल हिजरत नहीं है। असल हिजरत का जो पैगाम है, हिजरत का जो मैसेज है और हिजरत का जो असल हदफ है वो अपना ईमान, अकीदा और तौहीद की हिफाजत करना मकसूद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के अंदर अलल ऐलान तौहीद का पैगाम देना शुरू किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर के क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून का पैगाम दिया। उस वक्त मक्का के लोगों ने
उस वक्त वहां के मुसलमानों पर जो उस वक्त इस्लाम कबूल किए थे उनके ऊपर इस कदर जुल्म तशद्दुद की आग बरसा रहे थे कि आप उन वाकयात को अगर पढ़ेंगे और उनकी परेशानी को देखेंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी हालत थी। और इसी तरीके से आप देखिए इब्तिदा में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम जो कबूल किया था, हजरत सुमैया का वाकया, हजरत अम्मार और यासिर का वाकया आप देखिए, हजरत बिलाल के वाकये को ले लीजिए कि किस कदर उन्होंने जुल्म तशद्दुद की आग बरसाई। यहां तक कि जब उन लोगों ने देखा कि कसरत से लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, तो वहां के जो सरदारान कुरैश थे, मक्का के जो बड़े बड़े सरदारान थे, उन लोगों ने मुकम्मल तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब का शेब अबी तालिब के अंदर बाइकाट किया, उन्हें महसूर कर दिया और इसी तरीके से मुकम्मल तौर से उनका बाइकाट कर दिया और मक्के के अंदर ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद मुसलमानों से कोई लेन देन का मामला नहीं करेगा, आज के बाद मुसलमानों से कोई बात नहीं करेगा, इनसे बिल्कुल सर के ताल्लुक, यानी मुकम्मल तौर से उनका बाइकाट कर दिया गया था। आप देखिए मक्का के अंदर बैतुल्लाह है, मक्का के अंदर खाने काबा है, लेकिन उसके बावजूद मक्का में रहते हुए वहां के मुसलमान इबादत नहीं कर सकते थे। वहां के मुसलमानों के का मामला तो ऐसा हो गया था कि वो अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो इस्लाम कबूल किए थे वो लोग परेशान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कहा कि ऐसा करो, तुम लोग मक्का से निकल करके हबशा की तरफ चले जाओ और हबशा चले जाओ। आप देखिए वहां क्रिश्चियन हुकूमत है, हबशा के अंदर क्रिश्चियन हुकूमत है, लेकिन वहां का जो हाकिम है वो किसी पर जुल्म नहीं करता है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता है। तुम लोग वहां रहोगे तो वहां जाकर के तुम अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत कर सकते हो, वहां रह करके तुम इबादत कर सकते हो। वो गरचे वो काफिर मुल्क है, क्रिश्चियन हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी पर जुल्म नहीं करता है। सहाबे किराम की तादाद 2 मरतबा वो लोग हबशा की तरफ हिजरत किए। और देखिए मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन पर जब परेशानियां बढ़ने लगी और हद से ज्यादा बड़ी परेशानियां बढ़ने लगी, मक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ आयते करीमा इस तरह से उतारने लगा कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हन साजी होने लगी, हिजरत के ताल्लुक से ज़हन साजी होने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अर्ज़ुल्लाहि वासिया, मक्का के अंदर आयत करीमा उतारी गई, अर्ज़ुल्लाहि वासिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन बहुत कुशादा है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तो तुम अगर अपने मुल्क को, अपने वतन को दीन की खातिर, अल्लाह की खातिर सब्र करते हुए, सब्र का मुजाहिरा करते हुए अगर तुम छोड़ते हो, वहां से मुंतकिल होते हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर सवाब है। और सूरह अनकबूत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़हन साजी करते हुए इस बात के ताल्लुक से इत्तला भी दिया और कहा वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, कि हिजरत करते वक्त तुम्हें खौफ नहीं होना चाहिए, हिजरत करते वक्त तुम्हें यह खौफ नहीं होना चाहिए कि तुम अपने बिजनेस को छोड़ दोगे, अपने कारोबार को छोड़ दोगे, अपना दौलत छोड़ दोगे, अपने घर को छोड़ दोगे और दूसरे मुल्क की तरफ जब जाओगे तो ऐसा नहीं कि तुम भूखे मरोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी मखलूकात और कुछ जानवर भी इस तरह से हैं जिनकी रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वहां रिज़्क़ देगा। ये आयते करीमा जो मक्का के अंदर उतर रही थी तो एक तरह से ज़हन साजी हो रही थी, और चूंकि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयते करीमा नाज़िल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को गोया की एक तरह से खबर दी जा रही थी और इस ताल्लुक से बताया जा रहा था कि ज़हन साजी कर लो, तुम्हें हिजरत करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरादा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ जाएं, तो ऐसे ही नहीं गए थे। आज मामला क्या होता है, बहुत सारे लोग हिजरत का मतलब नहीं समझते हैं, हिजरत के मफहूम को नहीं समझते हैं और ये समझते हैं कि अब चलो जहां से निकल चलो, और इसी तरीके से
अपने साजो सामान को लेकर के यहाँ से मुंतकिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहां जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले जिस मुल्क में रहते थे वहां अमन में वो रह सकते थे, लेकिन दूसरी जगह जब वो जाते हैं तो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही हिजरत नहीं की। आप देखिए, मदीना से कुछ लोग हज करने के लिए आया करते थे। वहां के जो काफिर थे पहले वो भी हज करने के लिए आया करते थे। जब मदीना से कुछ लोग वहां आते थे तो अक़बा नामी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से रातों में उनसे मुलाकातें किया करते थे। मदीना के लोग आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तबलीग करते थे, उन्हें इस्लाम की दावत देते थे, तबलीग करते थे। बहुत सारे लोग वहां पर इस्लाम कबूल किए। जब बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिए और मदीना से आए हुए कुछ लोगों की तादाद जब मुसलमानों की हो गई तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और बताया और ये कहा कि हम तुम्हारे यहाँ हिजरत करने वाले हैं, मक्का से बहुत सारे अहबाब मदीना की तरफ आने वाले हैं, तो ऐसे ऊपर ऐसे वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तुम्हारा खून हमारा खून, तुम्हारा जान हमारा जान। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से अहद व मुआहदा किया। सारी तफसीलात और हर चीज का इल्म और शरीयत के ताल्लुक से सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली तौर पर उन लोगों को कह दिया था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना किया कि पहले तुम जाओ वहां पर और इस्लाम की तबलीग करो और इस्लाम के बारे में बताओ। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही मदीना चले जाते हैं, फिर वहां माहौल बनाते हैं और इसी तरीके से वहां इस्लाम की तबलीग करते हैं, लोगों को समझाते हैं। उसके बाद फिर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन धीरे धीरे मक्का से मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं। और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जिस वक्त आदमी अपने बारे में सोचे कि एक वो शख्स जो किसी जगह पर वो बहुत जमाने से रह रहा है, उसका वहां घर है, उसका वहां तिजारत है, उसका वहां बिजनेस है और उसकी प्रॉपर्टी है। अब अगर उस शख्स को वो सारी चीजें छोड़ करके तने तनहा किसी और मुल्क में भेज दिया जाए, अब आदमी सोच ले कि वो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो बहुत ज्यादा मालदार किस्म के लोग भी मक्का में रहते थे, लेकिन ईमान की खातिर, अकीदे के खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी। आप देखिए सुहेब रूमी का वाकया। सुहेब रूमी उनको जब हिजरत करने की बारी आई और उन्होंने जब इरादा किया कि अब वो मक्का से मदीना की तरफ जाएंगे तो कुछ उन्होंने साजो सामान लिया और साजो सामान के साथ वो रवाना होना चाहते थे। मक्का के काफिर आ गए और कहा कि ऐ सुहेब, कहां का इरादा है, तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं मदीना जाना चाहता हूं, मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये माल, ये मनाल, ये जायदाद तुमने मक्का में रह करके बनाया है और मक्का में रहते हुए तुमने ये दौलत को कमाया है। अगर तुम मक्का में रहना चाहते हो तो अच्छी बात है, रह सकते हो, लेकिन अगर तुम मक्का छोड़ करके मदीना जाओगे तो ये साजो सामान, ये मालो दौलत तुम्हें मक्का के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इसे ले जाने की इजाजत नहीं है। सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने जो अपने ही बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने जो रुपए और पैसे कमाए थे, मालो दौलत जो उन्होंने इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा पूरा का पूरा मक्का के काफिरों के हवाले कर देते हैं और तने तनहा वो मदीना की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात होती है तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सारी बातें बताते हैं, जब सारी बातें बताते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रब या सुहेब, ऐ सुहेब, तुमने तो बहुत ही नफा बख्श तिजारत की है, तुमने बहुत ही नफा बख्श तिजारत की है। अब सुहेब रूमी ने कौन सा नफा बख्श तिजारत किया? उन्होंने तो अपना मालो दौलत और जायदाद सब लुटा दिए, काफिरों के हवाले करके तने तनहा वहां पहुंचे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप देखिए, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं के बारे में आयत करीमा उतारी थी कि वह मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह की रजा के खातिर अपने जानों की भी कुर्बानी दे देते हैं। तो आप देखिए सहाबे किराम की कुर्बानियां, हिजरत के मुताल्लिक आप देखिए कि उन्होंने सब कुछ लौटा दिया,
सब कुछ लुटा दिया और तने तनहा मदीना की तरफ चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करने की बारी आई, आप देखिए जब लोगों को पता चल गया, सहाबा किराम में बहुत सारे लोग मदीना पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं मिली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नहीं आया था, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ मक्का में थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलती है कि अब आप भी मक्का छोड़ करके मदीना चले आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियां करना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करने लगे और आपके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी साथ में ले चलेंगे। लेकिन मामला आप देखिए, जैसे ही काफिरों को खबर होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हजरत अबू बकर मक्का को छोड़कर मदीना जाने वाले हैं, उस वक्त उन लोगों ने दारुल नदवा के अंदर एक मजलिस मुनाकिद की और मजलिस मुनाकिद करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसका तज़किरा किया कि वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ यख़्रुजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये लोग सारे चल रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश रचने के लिए इन्होंने एक बाकायदा एक बहुत बड़ी मीटिंग का इंतखाब किया और उन लोगों ने इस तरह से बातें की कि अल्लाह के बाद लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, बाद लोगों ने कहा कि उन्हें कैद कर दिया जाए। ये सारी तदबीरें, ये सारे चाले चल रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सारे चालों को नाकाम कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मुहासरा ये लोग करने वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल गया कि ये लोग मेरे घर का मुहासरा करेंगे, या तो मुझे कैद कर देंगे या तो मुझे जाने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इनकी प्लानिंग का पता चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा जब इन लोगों ने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी अपने मुट्ठी के अंदर एक मिट्टी ली और इनके आंखों के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत करीमा सूरह यासीन की तिलावत करते हुए वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फाग़शयनाहुम फहुम ला यबसरून। अल्लाह ने कहा कि हमने इनके दाएं जानिब रुकावट पैदा कर दी, हमने इनके बाएं जानिब रुकावट पैदा कर दी, हमने इन्हें अंधा कर दिया, फहुम ला यबसरून, ये लोग देख नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिट्टी को लेकर के इनके ऊपर फेंकते हुए वहां से निकल गए। कोई भी काफिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकता था। आप सोचिए, ये किस्से और कहानी के तौर पर जब ये वाकया सुनते हैं तो हम उसे एक किस्सा समझ रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये कितनी बड़ी कुर्बानी और वो मंजर कैसा रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के वहां जाकर के गारे सौर में छुप जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहते हैं। अब इधर ऐलान हो जाता है, इधर ऐलान कर दिया जाता है कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हजरत अबू बकर को पकड़ करके लेकर आएगा, उसको 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिया जाएगा। उस दौर में 100 सुर्ख ऊंट की जो कीमत थी, इस वक्त मौजूदा दौर में जो सबसे महंगी गाड़ी है, उसकी कीमत अगर आप निकालें और देखें कि अगर मौजूदा दौर में जो सबसे महंगी गाड़ी अगर 100 गाड़ी किसी के पास होगी तो आप सोचिए कि उसकी कितनी कीमत हो सकती है। उस वक्त 100 सुर्ख ऊंट का के ताल्लुक से जो ऐलान किया गया था और इनाम में देने की जो बात कही गई थी, रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए सिर्फ छोटे छोटे लोग नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने भी इस रकम को जब सुना और इतना बड़ा रकम मिलने वाला है तो उन लोगों ने भी तलाश जारी कर दिया था, क्योंकि उन्हें भी पैसे की लालच थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गारे सौर में छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि सुराका का वाकया, इस्लाम से कबूल से पहले का वाकया, उन्होंने बताया कि जब मैंने ये सुना कि 100 सुर्ख ऊंट मिलने वाला है तो मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशने के लिए मैं भी निकला कि शायद कि ये रकम मुझे मिल जाए और ये इनाम मैं हासिल कर लूं। कहते हैं कि एक आदमी और निकला था तलाशने के लिए, फिर उसने कहा कि मैंने साहिल पर, समंदर के साहिल पर मैंने 2 शबी को देखा है, 2 शख्स को जाते हुए देखा है। सुराका कहते हैं कि मैंने उस आदमी की बात को झुठला दिया और मैंने कहा कि ये दोनों शख्स जो वहां से जा रहे हैं मैं इन्हें जानता हूं, वो दोनों नहीं है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। क्योंकि सुराका का कहना था कि मुझे वो इनाम हासिल करना था, मुझे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करना था, पकड़ना था, इसलिए मैं उसे झुठला करके मैं वहां से भागा और उसी तरीके से फौरन दोनों का पीछा किया, लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन को छोड़ करके दूसरी मदीना की तरफ, मक्का से मदीना की तरफ जब जा रहे थे तो कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी नहीं पता था कि मक्का से मदीना कैसे जाना है, कौन से रास्ते का इंतखाब करना है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने साथी से, कहा कि अगर हम आम रास्ते से निकल कर जाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, तो हमें ऐसे रास्ते का इंतखाब करना है कि ऐसे रास्ते से हमें जाना है कि जहां पर आम रास्ता न हो, बल्कि कोई ऐसा रास्ता हो कि इनकी नजर भी हमें आगे ऊपर न पड़े और हम लोग यहां से आसानी के साथ मदीना पहुंच जाएं। अब उनकी रहनुमाई करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी मदद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक ऐसा बंदा खड़ा हो गया जो गैर मुस्लिम था। आप देखिए, गैर मुस्लिम शख्स था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुपके से मुलाकात करता है। अब देखिए, उसके दिल में भी लालच हो सकती थी, अगर वो जाकर के एड्रेस बता देता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला जगह पे छुपे हुए हैं तो वो इनाम हासिल कर लेता, लेकिन उसके दिल में इस तरह की कोई बात नहीं थी। अल्लाह को चूंकि मदद भी करना था, वो गैर मुस्लिम शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, जिसका नाम था अब्दुल्लाह बिन उरैक़त। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ पैसा देने के लिए कहा कि तुम हमें पहुंचा दोगे। उन्होंने कहा कि मैं बहिफाजत तुम्हें वहां ले जाकर के तुम्हें रास्ते की रहनुमाई करूंगा, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की तरफ ले गए। अल्लाह की मदद आई। लेकिन आप देखिए, हिजरत जैसी अजीम कुर्बानी सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने दी, और हिजरत की इतनी फजीलत है, इतनी भी फजीलत है कि एक आदमी अगर खुदकशी कर लेता है, अपने आप को हिलाक कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ताल्लुक से जहन्नम का वादा किया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अम्र बिन तुफैल अद-दौसी का एक साथी था, वो हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने अपनी उंगली की काटा, और अपनी उंगली को उसने इस तरह से काटा कि खून बहते बहते उसका इंतकाल हो गया। अब ये तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान, और वो कहते हैं कि ये शख्स जो मेरा साथी, आखिर इसके साथ क्या मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उसने मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ आया, लेकिन उसने अपने आप को हिलाक कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका क्या अंजाम होगा, इसलिए कि खुदकशी की सजा जहन्नम है। तो फिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा, मैंने ख्वाब में देखा और अपने उस साथी को देखा, और उस साथी को देखा कि उसका जो हाथ था वो ढका हुआ था, और इसी तरीके से जब मैंने उससे मुलाकात किया तो मैंने उससे कहा कि तुम तो खुदकशी करके आए थे, तुमने तो खुदकशी कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ क्या मामला किया है। वो आदमी कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन बस मामला सिर्फ इतना है कि जो उंगली मैंने काटा था ये वैसे के वैसे भी उसी हालत में है। कहते हैं कि मैं उससे गुफ्तगू ख्वाब में कर ही रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, और मैंने पूरा ख्वाब का मामला पूरा बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने जो ख्वाब में देखा है वो सच है, सच्चा ख्वाब तुमने देखा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आदमी की मग़फ़िरत कर दी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए दुआ की, और वो दुआ ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तूने उस आदमी की मग़फ़िरत कर दी है, तूने उस शख्स को बख्श दिया है, तो जो उसका उंगली है जो उसने अपने आप को काट लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे भी तू माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे भी माफ कर दिया। वो मुहाजिर शख्स, वो मुहाजिर था, हिजरत करके गया था। आप देखिए हिजरत की कितनी फजीलत है। लेकिन एक सवाल हमारे जहन में ये आता है, हिजरत की फजीलत बयान की जा रही है, मुहाजिर की फजीलत बयान की जा रही है कि आदमी अपना ईमान, अपने अकीदे और तौहीद की हिफाजत के लिए आदमी अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क की तरफ चले जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। हर मुल्क का
हर मुल्क का अपना अपना निजाम है। कोई भी आदमी कभी भी कहीं से अगर ये सोचे कि मैं ये मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क में चले जाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आदमी नहीं जा सकता है। इस वक्त परमिशन नहीं है, आदमी को वीजा लेकर के जाना पड़ेगा। या इसी तरीके से अगर कोई मुल्क किसी मुल्क वालों को नेशनलिटी देता है, किसी शख्स को देता है तो वहां जा सकता है। तो ऐसे मौके पर हिजरत जब मुमकिन ही नहीं है तो इस वक्त हिजरत के मौजू को छेड़ना, हिजरत की फजीलत बयान करने का क्या माना रखता है? आप देखिए हिजरत दो तरह से होती है, एक हिजरत है जाहिरी और एक हिजरत है बातिनी। हिजरत जाहिरी का मतलब ये होता है कि आदमी अपने जिस्मो जान के साथ अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क की तरफ जाए, लेकिन एक होता है हिजरतुल क़ल्ब, बातिनी हिजरत, कि आदमी बातिनी हिजरत करे। और इस दौर में मुमकिन है कि आदमी बातिनी हिजरत करे। बातिनी हिजरत का मतलब ये है कि शिर्क से तौहीद की तरफ हिजरत करे, बिदात से सुन्नत की तरफ हिजरत करे, मासियत को छोड़ करके और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके वो हिजरत करे, गुनाहों से सवाब की तरफ, अज्र की तरफ वो हिजरत करे, और इसी तरीके से खयानत से अमानत की तरफ वो हिजरत करे। इस वक्त आदमी इस तरह से हिजरत कर सकता है। हिजरत की कुर्बानियां गुनाहों को छोड़ करके, मासी को तर्क करके वो हिजरत करके वो सही रास्ते पर आ सकता है। आप देखिए आज सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने जिस्मानी तौर पर भी हिजरत की और उन्होंने बातिनी तौर पर भी हिजरत की। आज हम देखें, हम अपना जायजा लें, सोचे कि हम छोटी सी कुर्बानियां देने के लिए तैयार नहीं। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और हम छोटी सी कुर्बानियां नहीं देते हैं। आज देखिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने का मसला हो या इसी तरीके से जुमे में हाजिरी देने का मसला हो, हम इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं कि हम मस्जिदों में पहले आ जाएं। मस्जिदें खाली रहती हैं, एक खतीब इंतजार करता है, वो अपनी बातें कुछ कहना चाहता है, लेकिन शुरुआत में अजान के बाद जो मस्जिदें खाली रहती हैं वो क्या गुफ्तगू करेगा? वो बाहर से आया है इसीलिए आया है कि कुछ बातें आपको दीन इस्लाम की बता दे, लेकिन मस्जिदें खाली रहती है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, मस्जिदें खाली रहते। आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते कि आप अपने दुकान को बंद करके और अपना कारोबार और तिजारत जुमा के दिन बंद करके अजान के वक्त फौरन मस्जिद के अंदर आ जाए, और उसका सवाब भी है। जैसे जैसे जो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, जो पहले आएगा उसका इतना सवाब, जो दूसरे में आएगा उसका इतना सवाब, ये सारी फजीलतें 12 आप सुनते हैं तो आप कम से कम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की कुर्बानियों का जब तज़किरा हो कि उन्होंने दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी, तो कम से कम हम अपने बारे में इतना सोच लें कि 1 घंटा पहले अपने दुकान को बंद कर दें और उस 1 घंटे में जुमे की अजान का वक्त हो तो कम से कम मस्जिद में हाजिरी दे दें। वो बातें जो बयान की जाती हैं, कुरान और हदीस की बातें जो बयान की जाती है, उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आप बहुत ज्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे। इसलिए कि खुतबे का वक्त जब शुरू हो जाता है और इसी तरीके से अजान होती है और खतीब जब खड़े होकर के खुतबा देना शुरू करता है, फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं, फिर आपके नाम की एंट्री नहीं हो पाती है। तो कम से कम हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए, और अजान से पहले या अजान के बाद अगर कोई मजबूरी है फिर भी अपना कम से कम खुतबे में मस्जिदों के अंदर आकर के, मस्जिदों में बैठ करके कम से कम खुतबे को समाप्त करना चाहिए। तो ये चंद बातें थी सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के कुर्बानियों के हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, सालेह बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रखी, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा हो ईमान बिल खैर पर हो। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम। वज़्कुरुल्लाह तआला अअला व अौला व अजल्ल व अतम्म व अकबर।